Hello, students. Today we shall study sentences, the different kinds of sentences. What are sentences? How are they divided on the basis of their structure and the basis of their function? So, first, आइए हम पढ़ते हैं sentence किसे कहते हैं. A sentence is a group of words that makes complete sense. Please pay attention to all the highlighted words. A group of words. A sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. It always contains a finite verb. Finite verb किसे कहते हैं? Finite verb is a type of word that shows agreement with the subject. हमारा जो sentence में subject है उसके साथ मेल रखता हुआ हमारा finite verb कौन से sense में कि उसके tense या फिर person या फिर number के basis पर वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता रहता है. अब finite verbs are the only verbs within a sentence or the main clause. अब हम पढ़ेंगे a sentence may be a statement which is a declarative statement, a question which is an interrogative sentence, an exclamation or an exclamatory sentence and a command or an imperative statement. इन सब बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. व्हाट इज अ सब्जेक्ट? A subject is that part of the sentence which contains the person or thing performing the action or verb in a sentence. हमारे सेंटेंस में किसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. वो कोई पर्सन या फिर कोई थिंग हो सकता है जो कि हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है, एंड वो एक्शन करता हुआ जो शब्द है उसे हम वर्ब कहते हैं. तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया. अभी व्हाट इज द प्रेडिकेट? दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और द क्लॉज व्हिच कंटेन्स अ वर्ब and states something about the subject is called a predicate. Up students, I would like to tell you that I have another video on clauses and phrases. आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है. Now, what are sentences used for? A sentence जो है ना वो एक grammatical unit है which is made up of one or more words. Now, हमें sentences की क्या जरूरत है? Because when we use different types of sentences और उसको अच्छे से हम पंक्चुएट करते हैं, मतलब कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, then we can write our assignments and we can express a variety of thoughts and emotions in a proper grammatical manner. So, independent clause क्या है और dependent clause क्या है? This has been covered in your clauses video. बट मैं आपको फिर से रिफ्रेश करने के लिए बोलती हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसमें एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, और डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, बट वो अपने आप कोई मीनिंग नहीं बनाता है. इट नीड्स टू बी अटैच्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब फ्री, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स. क्लॉज किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा? एक दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर. क्यों? सो दैट इट मेक्स proper sense. So now that you have understood what is an independent clause and what is a dependent clause, let us come over, proceed with your sentences chapter. अब यहां पर एक वर्कशीट है which is independent or dependent clause, which we will do later after understanding sentences chapter. Now, जैसे कि मैंने बोला, sentence is a group of words which makes complete sense, and they are divided into two different kinds based on structure and function. On the basis of function, कि क्या फंक्शन करते हैं, क्या समझाते हैं, वो चार तरह के हैं जो मैंने बोला आपको: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. और बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि वो कैसे बनते हैं, किस क्लॉजेस को जोड़कर या फिर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को के साथ
Based on that, there are four kinds: simple sentence, compound sentence, complex sentence, and complex compound sentence. So in this chapter, we will study these 8 kinds of sentences. ठीक है? Now, mother is a gift from God for a child. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि बस ये एक फैक्ट को स्टेट कर रहा है. क्या है वो फैक्ट? कि मदर इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर अ चाइल्ड. अब देखिए दूसरा, मम्मी व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क क्वेश्चन मार्क. ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है. सो द वर्ड क्वेश्चनिंग वर्ड इज व्हेन. सो दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. मीना कॉमा प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. प्लीज मतलब हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो दिस इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस. जो भी सेंटेंसेस कुछ कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें हम इंपेरेटिव sentences कहते हैं. D. Wow! Exclamation mark. It looks yummy. This is an exclamatory sentence. It expresses excitement or emotion. Now, kinds of sentences according to structure. A sentence may consist of one clause or more clauses, dependent and independent clause. अब इस बेसिस पे हम 4 तरह के सेंटेंसेस जो आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो भी पढ़ेंगे. आइए पहले पढ़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? नाउ बेस्ड ऑन द थॉट और एक्सप्रेशन जो सेंटेंस में है उसके बेसिस पे हम सेंटेंसेस को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो एक सिंपल सा एक फैक्ट या स्टेटमेंट स्टेट करते हैं, एक कुछ ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं. इट मेक्स अ डिक्लेरेशन, इट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ पीरियड. ठीक है. नाउ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस विल, उसका जो ऑर्डर है ना वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ब इज योर एक्शन वर्ड. सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर. अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई. वर्ब क्या है? वॉन्ट टू बी. ठीक है. सो इसका ऑर्डर आपको समझ में आ गया. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हो सकते हैं. Next is your interrogative sentence. Interrogative sentence will always ask us something. Ask us something. It will always ask a question. And they want some information. That is why they question you. They always end with a question mark. इसका order है WH words जो आपके what, which, who, whom ये सब आपके WH words है. Plus auxiliary verb. Auxiliary verbs are helping verbs. Is, am, are, ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स है. प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का. व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज अ क्वेश्चनिंग सेंटेंस. सो इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज योर इंपेरेटिव सेंटेंस. और इंपेरेटिव मतलब कमांड करना. ठीक है. या फिर कुछ रिक्वेस्ट करना. दे गिव अ कमांड, दे टेल अस टू डू समथिंग. दे एंड विद अ फुल स्टॉप या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क. क्यों? बिकॉज द एक्सक्लेमेशन मार्क कैन ऑल्सो बी एन इंपेरेटिव सेंटेंस. द ऑर्डर फॉर दिस इंपेरेटिव सेंटेंस इज बेस वर्ब. बेस वर्ब मतलब जो वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में है उसे हम बेस वर्ब बोलते हैं. वो किसी भी पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं होता है. द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड टू बी यू, मतलब आप ही सब्जेक्ट हो. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? दे गिव अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट. आप इतना याद रखिए. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज सिट डाउन. ठीक है. ये प्लीज जब वर्ड आया है मतलब ये एक रिक्वेस्ट है, तो ये आपका एक हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस. सिट डाउन नाउ मतलब ये आपका कमांड हो गया. ठीक है. ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन. ये जो होते हैं ना, दे एक्सप्रेस ग्रेट इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड एंगर. जो आपके उत्साह, आश्चर्य, खुशी, गुस्सा, ये सब जो दिखाते हैं ना उनको हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस कहते हैं.
ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो दिखाते हैं जो सेंटेंसेस, उसे हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ऑर्डर फॉर द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर हाउ के साथ ये सब जुड़ना. ठीक है. एग्जाम्पल, इट इज टू डेंजरस टू क्लाइम दैट माउंटेन. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट, अब हमें पता है कि सेंटेंस जो है, हम वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंसेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस एंड phrases that can be structured in how many ways? 3 to 4 ways. ठीक है. There are 4 types of sentences based on the structure: simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Now, each sentence is defined by the use of independent and dependent clauses, conjunctions, and subordinates. अब देखिए, 4 तरह के सेंटेंसेस है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के ऊपर. अब हर सेंटेंस जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, उसमें या तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए, और उसमें या तो कंजंक्शंस होने चाहिए एंड सबऑर्डिनेटर्स होने चाहिए. ठीक है, ये आपका डिफाइन करेगा ये सेंटेंसेस को. कंजंक्शन क्या है? इट इज अ वर्ड और अ फ्रेज विच कनेक्ट्स. कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड. किसको कनेक्ट करेगा? दो वर्ड्स को, या दो फ्रेजेस को, या दो क्लॉजेस को, या फिर एक फ्रेज को क्लॉज के साथ, या फिर एक वर्ड को फ्रेज के साथ, एंड सेंटेंसेस टुगेदर. Phrase क्या है? Phrase is a group of words that works together in a sentence, but it does not have a subject or a verb. Phrase does not have a subject or a verb. Remember this, it is very important. Phrase में subject and verb नहीं है. Clause में है. Subject and verb clause में है. Phrase में नहीं है. आइए पढ़ते पहले simple sentences क्या है. A simple sentence is an independent clause. Now, before doing this sentences chapter, students, go over to my phrases and clauses chapter. Then this will become more easy for you. So, what is a simple sentence? It is an independent clause with no conjunction. उसमें कोई भी connector नहीं है, linking word नहीं है, या फिर कोई भी dependent clause भी नहीं है. A simple sentence contains a subject and a verb, and it may also have an object and modifier. Modifier क्या करता है? वो आपके noun, adjective या verb को और भी meaning देता है. However, it contains only one independent clause. So, simple में अगर आपको समझना है, simple sentence जो है आपका independent clause है. ठीक है, उसमें subject and verb है, complete meaning समझाता है. ठीक है, so simple sentence अगर आपको कोई पूछेगा, तो आप बस इतना याद रखिए कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ठीक है, और अपने आप में वो मीनिंगफुल सेंटेंस है. ठीक है. नाउ, what is a compound sentence? A sentence that includes 2 or more independent clauses is known as a compound sentence. In a compound sentence, the clauses are joined by a comma, which is paired with a either with a coordinating conjunction, या फिर एक semicolon, या फिर एक colon. So this kind of combination is known as coordination. Now, when all of your clauses are independent clauses, you can combine them using a coordinating conjunction. लेकिन अगर आपको एक dependent clause plus independent clause करना है, आपको उसमें subordinating conjunction जोड़ना है. ठीक है. Independent clause plus independent clause are joined by coordinating conjunction. Dependent clause plus independent clause will be joined by subordinating conjunction. ठीक है. Now, what is a complex sentence? A sentence that includes an independent clause and one or more dependent clauses is known as a complex sentence. And फिर compound complex sentence क्या है? A sentence that includes 2 or more independent clauses and at least one dependent clause is known as a compound complex sentence. Compound भी है और complex भी है. अब compound sentence का आपको पता है क्या है? compound sentence? Compound sentence has 2 or more independent clauses. Complex sentence में एक dependent clause होना चाहिए. अगर दोनों है compound complex मतलब 2 independent clauses प्लस एक dependent clause, तो उसे हम बोलते हैं compound complex sentence. ठीक है. इसमें देखिए
In either of these kind of sentences, the subordinating conjunction signifies the beginning of the dependent clause. Now, when the dependent clause comes first, it needs to be followed by a comma. अब इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझेंगे. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड व्हाट आर दीज सेंटेंसेस टू यू. अब देखिए एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे. सिंपल सेंटेंस consists of only one independent clause containing a subject and a verb, and it expresses complete thought. There is no dependent clause. An independent clause is also called as main clause. It's called a simple sentence. So जो आपका independent clauses या main clauses या principal clauses है, उन्हें हम simple sentences भी कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए. ही लाफ्ड, शी एट एन एप्पल, दे आर स्लीपिंग, आई बॉट अ बुक. सो ही, शी, दे, आई आपके सब्जेक्ट हुए एंड लाफ्ड, एट, स्लीपिंग, बॉट आपके वर्ब हुए. जो सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट एंड अ वर्ब है उतना ही काफी होता है एक सेंटेंस को अच्छे से अपना मीनिंग समझाने के लिए. उसे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. ठीक है, सिंपल. आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया. नेक्स्ट हम जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में. अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस मतलब इट शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेस होने चाहिए और वो दोनों क्लॉजेस क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए. मतलब दोस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस शुड एक्सप्लेन देयर मीनिंग ऑन देयर ओन. ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स. सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैव टू बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड सेंटेंस. और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कौन जोड़ता है? आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए मेरे कंजंक्शंस वीडियो में आपको बताया था एक फॉर्मूला है फैन बॉयज, जिसमें फैन बॉयज के लिए F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. ठीक है, for and nor but or yet so ये फैन बॉयज का शॉर्ट फॉर्म जो है ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और ये हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन अ कंपाउंड सेंटेंस इज दैट a compound sentence consists of two independent clauses which are joined by a coordinating conjunction. एक compound sentence में कोई dependent clause नहीं है. So the coordinating conjunctions used to join independent clauses are your fanboys, जिसका यहाँ पर for and nor but और yet so है. Independent clauses can also be joined by a semicolon. Semicolon के साथ भी हम independent clauses को जोड़ सकते हैं. एक comma may or may not be used before the conjunction in a compound sentence. Examples: I like an apple, my brother likes a mango. ये दोनों sentences independent clauses है. मीनिंग समझ में आ रहा है. और इन दोनों को जोड़ रहा है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट. आई हेल्प्ड हिम, ही बिकेम हैप्पी. ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. इनको जोड़ रहा है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड. ही फेल्ड 2 times, ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड. ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. इनको जोड़ रहा है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन येट. आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ही रिप्लाइड करेक्टली. अब देखिए यहां पर कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन नहीं होकर एक सेमीकोलन भी हो सकता है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है. ठीक है, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस भी समझ में आ गया. अब हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ. नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज विच इज ज्वाइंड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इनको जोड़ते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को कौन जोड़ेगा? या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स क्या है? बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, अनलेस, एक्सेट्रा. ठीक है, सो एंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? दैट, हु, विच, एक्सेट्रा. अब देखिए एग्जाम्पल देखिए. आई मेट द बॉय, हैड हेल्प्ड मी. I met the boy is an independent clause. Had helped me
कौन हेल्प किया, किसने हेल्प किया, कब हेल्प किया, कैसे हेल्प किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो दिस हैड हेल्प मी इज योर डिपेंडेंट क्लॉज. आई मेट द बॉय इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज. इन दोनों को जोड़ रहा है द वर्ड हु विच इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जुड़ते हैं या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ या तो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ. सो ये यहाँ पर आई मेट द बॉय इंडिपेंडेंट क्लॉज इज जॉइंड टू हैड हेल्प मी डिपेंडेंट क्लॉज बाय द रिलेटिव प्रोनाउन हु. He is wearing a shirt which looks nice. She is wearing a shirt. Independent clause looks nice is not understandable. So when we join it with the relative pronoun which to the independent clause she is wearing a shirt, the sentence becomes meaningful. You can't pass the test. You study for it. Unless you study for it. Unless जो है आपका subordinating conjunction है. Now अभी ध्यान से सुनिए इसको. If a complex sentence begins with a independent clause, अगर आपका सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ शुरू हो रहा है, a comma is not used between the clauses in a complex sentence. अब आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या है बच्चों, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. तो अगर आपका सेंटेंस जो है एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ शुरू हो रहा है, उन दोनों सेंटेंसेस, किन दोनों क्लॉजेस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कॉमा नहीं जुड़ेगा. ठीक है. बट अगर आपका वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ शुरू होगा, तब एक कॉमा जुड़ेगा. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. ही इज प्लेइंग वेल ऑल्दो ही इज इल. ही इज प्लेइंग वेल कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ऑल्दो ही इज इल कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है. सो ये स्टार्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तो आपका कॉमा नहीं लगेगा. बट बी वाला एग्जाम्पल देखिए. ऑल्दो ही इज इल कॉमा ही इज प्लेइंग वेल. ऑल्दो ही इज इल इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. he is playing well is an independent clause, we can understand that वो अच्छा खेल रहा है. सो अगर आपका सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है स्टार्ट हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, उसके बाद एक कॉमा लगेगा. लेकिन जैसे एग्जाम्पल ए में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि शुरू हो रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, उसके बाद कॉमा नहीं जुड़ेगा. ओके. नेक्स्ट वी विल रीड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं. अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड अ कंपाउंड सेंटेंस. सो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए. सो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ही वेंट टू कॉलेज एंड आई वेंट टू अ मार्केट वेयर आई बॉट अ बुक. ठीक है. अब देखिए ये पहले सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपके कौन से हैं, ही वेंट टू कॉलेज समझ में आ रहा है मीनिंग, आई वेंट टू अ मार्केट समझ में आ रहा है मीनिंग. ठीक है. और एक डिपेंडेंट क्लॉज है वेयर आई बॉट अ बुक. वेयर आई बॉट अ बुक, अगर मैं सिर्फ आपको एक सेंटेंस दूंगी वेयर आई बॉट अ बुक, कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं. सो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हुआ. सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ता है आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो कि एंड है यहाँ पे. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. आई लाइक मैथ्स बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर. सो इसमें आप क्या देखेंगे, आई लाइक मैथ्स इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, my brother likes biology is an independent clause, they are joined by a coordinating conjunction but, and then because he wants to be a doctor के साथ जुड़कर पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है ये. ठीक है. अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द रेन. ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि दे आपका सब्जेक्ट है और एंजॉयड आपका वर्ब है. सो दिस दे इट इज अ सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ सिंपल सेंटेंस. ऑल्दो इट रेन्ड अ लॉट, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. एंड क्योंकि ये सेंटेंस आपका डिपेंडेंट क्लॉज के साथ शुरू हो रहा है, इसलिए इसके बाद कॉमा आता है. दे एंजॉयड देमसेल्व्स इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज प्लस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. और अगर वो so because this sentence, complex sentence, is of a dependent clause and an independent clause, and this is starting with a dependent clause. Therefore, these two clauses are separated by a comma.
दूसरा सेंटेंस देखिए, बीइंग रिच राजा लेड अ सिंपल लाइफ, ये एक सिंपल सेंटेंस है। दो राजा वाज रिच ही लेड अ सिंपल लाइफ अगर होगा तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। व्हाई? बिकॉज दो राजा वाज रिच इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ही लेड अ सिंपल लाइफ इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जिससे हमें मीनिंग खुद ब खुद समझ में आए सेंटेंस से, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाते हैं। He led a simple life can be understood on its own, so it is an independent clause. But because this sentence, though Raja was rich, is starting with an independent clause, it is separated by a comma. क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन है। राजा वॉज रिच, ही लेड अ सिंपल एंड रिलैक्सिंग लाइफ, ये एक दो ही आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, और इसको हम जोड़ेंगे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो कि येट है। इसीलिए कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। सो सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रेडिकेट क्या है, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द वर्ड। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख के आपको समझाया है। यू कैन गो थ्रू इट अगेन if you have any doubts. So with that, students, we come to the end of this chapter, sentences. But I would advise you to first go through your clauses and phrases chapter so that आपको clauses जो है easily समझ में आ जाए। उसके बाद आप ये sentences वाला वीडियो देखेंगे तो it will be more beneficial to you. If you like my channel, students, please like, share and subscribe कीजिए, and thank you for watching. Keep the notification button on so that when I post the next video, you are notified about it. Thank you, students.